As you can see, we shall be discussing three distinct but related concepts, that is simple, partial and multiple correlation. Simple, partial and multiple correlation. We have already explained the concept correlation, and that is the meaning of simple correlation. So in order to find the relationship, we can apply all these three statistics in order to test a hypothesis. Simple, whether the correlation is simple, partial or multiple depends on the number of variables studied. Number one, the correlation is said to be simple when only two variables are studied. If two variables are studied, if the relationship between two variables are studied, then this correlation is known as simple correlation. Clear? ए के बढ़ने से, हमने शुरू में कंसेप्ट भी देखा है, बी बढ़ता है या घटता है तो कहा यह जाता है कि ए और बी आपस में सहसंबंधित है, संबंधित है, और दिस कंसेप्ट इज वेरी मच रिलेटेड टू द सिंपल कोरिलेशन, टू वेरिएबल्स। और उसी टू वेरिएबल्स की मदद से हम आगे भी स्टडी करते हैं। लेट अस सी, द कोरिलेशन इज आइदर मल्टीपल और पार्शियल when three or more variables are studied. Instead of two, if there are three or more variables, we can also use the partial correlation. Rather, the partial correlation can be employed and simultaneously the multiple correlation can be employed. So, the correlation is either multiple or partial when three or more variables are studied. मतलब यह कि यदि हम दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं उस केस में सिंपल कोरिलेशन ही संभव है, लेकिन यदि दो से अधिक, तीन या और अधिक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज C is influencing the relationship. C is a variable. Variable C is influencing the relationship between variable A and B. मतलब A और B के बीच का यदि हम रिलेशनशिप देख रहे हैं तो यह सिंपल है। हम B का C के साथ, A का C के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन हमको इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप देखना है A और B का। सो सपोज वेरिएबल C इज इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल A एंड B. B कैन न्यूट्रलाइज और पार्शियल आउट the influence of variable C to find out the unaffected relationship between A and B. This is possible from the statistics partial correlation. So partial correlation का क्या काम है? There are three variables A and B. C all are related to each other. A is related to C, B is related to C, and A and B are related. Now we have to find the independent relationship between A and B which is not being influenced by C. So we utilize partial correlation. मतलब partial correlation एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से तीन से अधिक भी, आगे हम लोग उसको और विस्तार से जानेंगे, तीन में से दो वेरिएबल का तीसरे को के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हुए रिलेशनशिप देखना है तो पार्शियल कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं।
So we shall write a formula. How? Here B are neutralizing C. So what will be the formula? You can note down R A B. और जिसको न्यूट्रलाइज करना है, जिसके इफेक्ट को पार्शियल आउट करना है, उसको यहां रखते हैं। अब ये इसको लिखेंगे R A B पहले वाला, और इसमें माइनस करेंगे R A के साथ C और फिर R एक B के साथ C। और ये जो राइट साइड में है, इसी का स्क्वायर रूट लेके हम उसको 1 माइनस AC देख रहे हैं, R स्क्वायर मतलब RAC स्क्वायर यू कैन से, और यहां इसको थोड़ा मिटा दें, RAC 1 माइनस RBC यहां R स्क्वायर कर। सो दिस इज द फॉर्मूला। We can also write from different source. We have gathered that this formula can be written in several forms. So RABC C को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप A और B का देख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होगा पार्शियल कोरिलेशन का, RAB माइनस RAC BC, और ये जो दोनों है वो नीचे यहां आ जाएगा। बहुत किताब में हम देखते हैं कि इस फॉर्मूला को XYZ के रूप में लिखते हैं। यदि हम इसको XYZ के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? RXYZ, मतलब ये Z जो वेरिएबल है, यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, Z को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको पार्शियल आउट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? R पहला XY माइनस R X के साथ Z हो जाएगा, और फिर R Y के साथ Z हो जाएगा ये, और इसी का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस यहां क्या है RXZ और इसी का स्क्वायर है, और दूसरे में क्या है 1 माइनस RYZ स्क्वायर। ये दो फॉर्म हो गया। यदि हम इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, लेकिन हम लोग जो अध्ययन करते आए हैं अब तक या बहुत सारी किताबों में देखा है, उसमें वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया जाता है 1, 2 और 3 के रूप में। 1, 2 यहां हम लिख देते हैं, जैसे XYZ ABC 3 वेरिएबल यहां भी है, 3 यहां भी 3 वेरिएबल है, तो यहां 1, 2, 3 के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग फर्दर जो अध्ययन करेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि हमको थर्ड वेरिएबल को न्यूट्रलाइज करना है, डायरेक्ट इफेक्ट देखना है 1 और 2 का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं हम तीसरा R123.3, मतलब तीसरा पार्शियल आउट किया जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले किया है R12 माइनस R13 और फिर R23, ठीक है, और इसी का स्क्वायर देख सकते हैं आप लोग। यहां ये नीचे आ जाएगा दोनों, 1 माइनस R13 इसका स्क्वायर और 1 माइनस R यहां क्या है 23 इसका स्क्वायर, देख सकते हैं तीनों को। तो ये इसको हम तीसरा मान लो। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पार्शियल कोरिलेशन की मदद से यदि 3 या 3 से अधिक वेरिएबल्स हैं तो 2 का तीसरे को पार्शियल आउट करके, अब वो किसी को भी हम पार्शियल आउट कर सकते हैं। यहां थर्ड को किया, कभी फर्स्ट को कर सकते हैं, कभी सेकंड को कर सकते हैं। कैसे?
हम आगे के लेक्चर में और देखेंगे। सो पार्शियल कोरिलेशन इज ए वेरी यूजफुल कोरिलेशन that is being implied for partialing out the effect of any variable, suppose third variable, in order to find the direct, uninfluenced, unaffected relationship between A and B. So now we have discussed partial correlation. We shall be discussing multiple correlation now. No, it will go. Let us wait some time so that we could थोड़ा टाइम लगेगा, छोटा बोर्ड होने से ये सब, लेकिन इसी में हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन के कंसेप्ट को भी समझ लेंगे। सो we have discussed partial correlation. The multiple correlation denotes correlation of one variable with multiple other variables. Suppose we want to compute multiple correlation between A with B and C। मतलब यदि हम समझने का प्रयास करें तो यह कि पार्शियल कोरिलेशन में हम लोग इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप देखते हैं, वहीं मल्टीपल कोरिलेशन में ज्वाइंट इफेक्ट के साथ रिलेशनशिप देखते हैं। मतलब यहां A और B का रिलेशनशिप या A का C के साथ रिलेशनशिप नहीं देख रहे हैं, हम लोग A का ज्वाइंट B और C के रिलेशनशिप को देख रहे हैं। मतलब A के साथ जो रिलेशनशिप देख रहे हैं वो एक साथ B और C दोनों का देख रहे हैं, और इसी को मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। मतलब यह कि द मल्टीपल कोरिलेशन डिनोट्स कोरिलेशन ऑफ वन वेरिएबल विथ मल्टीपल अदर वेरिएबल्स। It may be more than two. It may be B, C, D, and like that. And we have already taken an example that we have to see the correlation between A with B and C. So what will be the formula? That will be R, यहां भी देखिए वेरिएबल ABC पहले हम लोग ले रहे हैं, तो RA डॉट BC। ये देख के भी पता चल जाएगा कि यहां यदि तीन वेरिएबल है तो यहां डॉट यदि है A B के बाद तो पार्शियल, और यहां इसके बाद डॉट है तो ये मल्टीपल, मतलब A का रिलेशनशिप B और C के साथ देख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा? रूट अंडर पहले ही आ जाएगा और आर ए बी का स्क्वायर प्लस आर ए सी का स्क्वायर, अर्थात माइनस 2 आर ए बी और फिर ए सी, तो ए सी आर ए सी, और फिर एक और जो छूट रहा है दैट इज बी सी, आर बी सी, इसको थोड़ा नीचे लिखें, आर बी सी, बी और सी के साथ ये, और नीचे फिर आ जाएगा आपका 1 माइनस आर बी सी, ये आर बी सी का स्क्वायर। इसको हम यदि 1 कर दें तो यहां ए बी सी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि कई जगह एक्स ए बी सी, कई जगह एक्स वाई जेड के रूप में फॉर्मूला है,
और हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं या करेंगे आगे वो 1 2 3 4 के रेस्पेक्ट में। तो इसी फॉर्मूला को हम XYZ के रेस्पेक्ट में यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहां R हो जाएगा आपका R कैपिटल, X डॉट YZ, ऐसे ही बनाते चलें इसको। थोड़ा सा यहाँ नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ तक आ गया है। यहाँ यदि हम नीचे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंबा जाएगा R X का X और Y प्लस R X Z और ये स्क्वायर तो होगा ही इसमें, ये 2 और बाकी 3 आएगा माइनस में तो 2, ये तो क्लियर है R X, ये क्या है Y और R X Z और फिर तीसरा आपका क्या आ जाएगा R Y Z जो इस तरफ है Y Z ये, और नीचे फिर क्या आ जाएगा, ये इसी रूट के भीतर ही 1 माइनस R Y Z और R का स्क्वायर। लेकिन हमने आपको पहले इसको यदि दूसरा इक्वेशन मान ले, so the formula is same, we are writing from using different variables. Instead of ABC we are writing XYZ, now we shall be writing R1 2 3. So we can also write the formula R1 dot 2 3 and what will be the formula। इसमें हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं क्योंकि हम लोग ने जो पढ़ाई की है वो इसी रूप में की है। अब R का 1 के साथ तो R12 R1 2 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर R13 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा और माइनस में आएगा 2 R12 R13 और फिर 2 3 जो बचेगा सो R23 और फिर यहां जो आया वो नीचे आ जाएगा 1 माइनस R23 और ये R का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 3 इसको ठीक से लिख दें, ऐसे ही थोड़ा सा जगह कम है तो ऐसे ही आप समझ लें इसको 1 R23 ये वाला यहाँ आएगा। मतलब यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि देखा कि XYZ हो या ABC हो या 1 2 3 हो, ये 3 वेरिएबल है और हमने शुरू में जो कंसेप्ट देखा उसमें क्या कहा कि सिंपल कोरिलेशन हम लोग तब निकालते हैं जब सिर्फ 2 वेरिएबल। ऑब्वियस है कि सिंपल कोरिलेशन की मदद से ही बाद के पार्शियल कोरिलेशन को हम लोग निकालते हैं, लेकिन जब हम 3 वेरिएबल होगा तभी पार्शियल या मल्टीपल कोरिलेशन की जरूरत होगी। अभी हमने देखा कि जैसे यहां लिखा R1.23 मतलब ये मल्टीपल को इंडिकेट करता है क्योंकि 2 और 3 के मतलब ज्वाइंट रिलेशनशिप को 1 के साथ देखना है, लेकिन जब 1.23 डालते हैं तो 1 और 2 का रिलेशनशिप इंडिपेंडेंटली 3 को पार्शियल आउट करते हुए देखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि कोरिलेशन में रिलेशनशिप हम 2 वेरिएबल का देखते हैं, लेकिन जब 2 से अधिक वेरिएबल हो जाते हैं तो हम मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन की मदद से और ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल, पार्शियल एंड द सिंपल कोरिलेशन। थैंक यू वेरी मच।